Okay, so let's start with our today's seminar. Now talking about is panic disorder and how we can treat with a Ayurveda. Before talking about the treatment related to panic disorder, we have to understand basically what is a panic disorder and how it is different from panic attack. So there is a very small difference where we can have to understand what is the difference between panic disorder and panic attacks. So let's start with this seminar also with a definition, and it is nothing but the continuation of a last thing which we have learned. What is a panic attack? If you revise your information about the last webinar, what I told over there, that all of sudden abrupt surge of intense fear और डिस्कम्फर्ट इज कॉल्ड पैनिक अटैक्स. यानी कि किसी को अगर एक ऐसे सडन विदाउट एनी ट्रिगर फैक्टर एक अचानक घबराहट होने लगे, एनी फियर होने लगे, विद इन मिनट ये बढ़ जाए, तो वी विल कॉल इट एज अ पैनिक अटैक. बट व्हाट इज पैनिक डिसऑर्डर? नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन. Again, according to DSM-5, that is a Diagnostic and Statistical Manual of Mental Health, it is defined as when the panic disorder is recurrent, unexpected, and happening for more than 1 month, or because of the panic attack, there is a persistent concern over the having the next one. What does this mean? दिस मीन कि उस एक्स वाई जेड पर्सन को पैनिक डिसऑर्डर आने के बाद दो सिचुएशन हो सकता है. या उसको पैनिक अटैक बार बार आ रहा है, जिसका अटैक जैसे मैंने बताया कि लास्ट टाइम हमने उसका ट्रीटमेंट देखा था, लेकिन कुछ कुछ को एक ही बार पैनिक अटैक आता है और उसके बाद दे आर परसिस्टेंट कंसर्न ओवर ऑफ हैविंग मोर अटैक. एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ पैनिक डिसऑर्डर. यानी कि मुझे अटैक तो आके चला गया, लेकिन मुझे अटैक क्यों आया? मेरा ब्लड टेस्ट नॉर्मल है, फिर भी मुझे ही क्यों हुआ? ये मुझे कैसे आ गया? क्या ये एज में मुझको आना चाहिए था? वी कॉल इट एज अ persistent fear of having the another attack. Now what is a more interesting thing in panic disorder is कि इसी कारणों से because of all this reason the person changes the behavior. Person changes the behavior यानी कि अगर मुझे थिएटर में बैठते समय अचानक पैनिक अटैक आया था, तो आई विल स्टार्ट अवॉइडिंग द गोइंग टू द थिएटर, जो मैंने लास्ट एग्जांपल आपको शेयर किया था. ऐसे ही किसी को अगर पैनिक डिसऑर्डर आया और वो उसको अवॉइड करना स्टार्ट किया, सो दैट इज गोइंग टू चेंज द बिहेवियर. देयरफॉर चेंजिंग इन द बिहेवियर, अवॉइडिंग द सिचुएशन is one of the most important, you can say, a sign of a panic disorder. So therefore the panic attack is a situation where the attack comes and attack goes. But if this attack is persistent, it is coming very frequent, we call it as a panic disorder. Or even the panic attack has come only for the one time, लेकिन उसके बाद person is in very continuous fear of getting another attack. Although the attack is not coming, still he is in fear. Let's see the example. Say example के तौर पे अगर let's go by the example, the very common example, कि अगर हम कहीं एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं या किसी एक रूम में बैठे हुए हैं, अचानक हमें छिपकली दिख गई और बिकॉज ऑफ दैट छिपकली ऑल ऑफ सडन एक इंटेंस फियर आता है कि कहीं वो गिर ना जाए. बिकॉज रिलेटेड टू lizards we have very different type of a mindset, very different type of a fear. अब होगा क्या कि नेक्स्ट टाइम अगर मुझे वहां बैठना होगा या उस रूम में जाना होगा, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा कि वहां लिजार्ड है, वहां जो है छिपकली है. तो इसके कारण एक आता है अवॉइडेंस सिचुएशन. अब सिचुएशन एकदम सिंपल है कि वहां एक छोटी सी छिपकली थी, लेकिन इस कारण से आप उस रूम में नहीं जा रहे, आप उस रूम को अवॉइड कर रहे हो. अब ऐसा होगा कि किसी एक पूरे के पूरे रूम में छिपकली अगर आपको दिख जाए, सो नेक्स्ट टाइम आप उस सिचुएशन को अवॉइड करने लगोगे. मे बी एक बार आपको झूला झूलते समय, गोल गोल घूमते समय अचानक आपको डर लगे, सो नेक्स्ट टाइम आप झूला झूलना बंद कर दोगे. यू मतलब रोलर कोस्टर हम लोग झूला झूलना में बंद कर देंगे, हम लोग कोई ग्लाइडिंग करना बंद कर देंगे. सी
all this thing is very important to understand कि when you avoid or when you try to avoid certain situation, so that avoiding is because you have the past history of some bad thing has happened over there. Either it is a fear or it is a some mishap. और आपने ऐसा देखा होगा कि पैराग्लाइडिंग में कुछ छूट गया, रोलर कोस्टर से कोई गिर गया, या कोई रिसोर्ट में गया था वहां पानी में डूब गया, इसलिए आप पानी में नहीं उतरोगे. So this information, either you have this panic attack and because of which you are very afraid, or with some misinformation which you have kept in your mind, and because of this you are avoiding. So we always say avoiding the situation is always going to make you go under this panic disorder. क्योंकि अवॉइड करते करते एक सर्टन ऐसा वैल्यू आ जाएगा, एक ऐसा सर्टन टाइम आ जाएगा कि जहां आप बिल्कुल भी जो है हर सिचुएशन को अवॉइड करना स्टार्ट करते हैं. एंड दिस इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ अ पैनिक डिसऑर्डर is they stop avoiding they start avoiding everything. और आज हम एग्जांपल देखेंगे कि कैसे ये अवॉइडिंग सिचुएशन becomes a trouble for them. So I hope you understood that what is the biggest difference between a panic attack and panic disorder. यानी कि आपका बॉडी या आपका पेशेंट पैनिक डिसऑर्डर में जाता है कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि उसकी मेंटालिटी रिगार्डिंग द सिचुएशन क्या थी. सो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द पैनिक अटैक एंड पैनिक डिसऑर्डर. अगर मैं थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली बोलूं तो पैनिक अटैक के पेशेंट जल्दी अपने पास नहीं आते क्योंकि वो बहुत कम फ्रीक्वेंट वाला होता है, और कभी कभी वो साल में एक बार आता है, 6 महीने में एक बार आता है, जिसको वो कभी जो है नोटिस नहीं करते. लेकिन जैसे मैंने वही बताया कि यही पैनिक अटैक अगर बार बार आने लगे तो यस आपके पास आएंगे. और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पैनिक अटैक के कारण अगर कोई एक अजीबो गरीब थॉट प्रोसेसिंग में जा रहा है, हर सिचुएशन में जा रहा है, तो ये धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो है पैनिक डिसऑर्डर में बनता है. अब इसमें एक और एडिशनल ऐड करना चाहता हूँ कि पैनिक अटैक से पैनिक डिसऑर्डर में जाने का जो पाथवे है, यानी कि जो प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं कि एक दिन में मैंने सोच लिया तो आ गया. मैं रोज वही चीज सोचता हूँ, रोज वही चीज को फियर करता हूँ, रोज वही चीज को मैं एनालाइज करता हूँ, रोज वो सिचुएशन को अवॉइड करता हूँ. मैं यूट्यूब पे जाके, नेट के पे जाके उसके ऊपर मोर इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, और हर वो इन्फॉर्मेशन लेता हूँ जो उसके अगेंस्ट है या उसके नेगेटिव है. तो यही रीजन है कि बिकॉज ऑफ दिस मल्टीपल मिस इन्फॉर्मेशन अवर बॉडी गोज इनटू द पैनिक डिसऑर्डर. सो ये आई थिंक सो आपको समझना है. सिम्टम्स क्या होते हैं पैनिक डिसऑर्डर की. पैनिक डिसऑर्डर के अंदर जो ये सिम्टम्स होता है, यानी कि मैं आगे फिर से बताऊंगा कि जो पैनिक अटैक के अंदर होता था कि वो 1-2 मिनट या 10 मिनट या 1 घंटे के लिए यू आर सफरिंग फ्रॉम लाइट हेडेडनेस, डिजीनेस, फेंटिंग, फीलिंग लाइक डाइंग, हैविंग द हार्ट अटैक लाइक ऑफ सिम्टम्स, ये सब होते थे. जो एंजाइटी डिसऑर्डर या पैनिक डिसऑर्डर है उसमें ये सिम्टम्स पूरे दिन आपके दिमाग में घूमते रहते हैं. यानी कभी आप इस पेशेंट से ना थोड़ा बात करके देखो, वो खुद बोलते हैं कि कभी हेडेक जाता है तो चेस्ट पेन आता है, चेस्ट पेन जाता है तो शेकीनेस आता है, शेकीनेस जाता है तो एपिटाइट मतलब यानी कि एब्डोमन पेन चालू होता है, एब्डोमन पेन जाता है डायरिया होता है, डायरिया होता है तो नमनेस आता है, नमनेस आता है तो लैक ऑफ स्लीप होता है. यानी कि पैनिक डिसऑर्डर के अंदर जो है बॉडी ऐसी हो जाती है कि किसी न किसी नेगेटिव चीज को ढूंढते रहती है, किसी न किसी अवॉइडिंग सिचुएशन को ढूंढते रहती है. और जितना पर्सन अवॉइडिंग करने की कोशिश करता है, जितना ओवर कॉन्शियस होता है, जितना हाइपर सेंसिटिव होता है अपने सिम्टम को लेके, उतना हर बार आपका पर्सन मोर एंड मोर पैनिक डिसऑर्डर के सिचुएशन में जाता है. इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि पैनिक डिसऑर्डर इज नॉट ऑल ऑफ सडन अ डिजीज, इट इज अ टाइप ऑफ अ कंडीशन. क्योंकि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे जो पैनिक डिसऑर्डर ये क्या है, इट इज अ बेनाइन, इट डजंट डू एट ऑल. बट इट इज नॉट सो. सी बिकॉज मोस्ट ऑफ द लोग जो एडिक्शन में जाते हैं, जो जो स्मोकिंग, अल्कोहलिक, ड्रग एडिक्शन में जाते हैं, इट इज मोस्टली ड्यू टू पैनिक डिसऑर्डर. बिकॉज पैनिक डिसऑर्डर के अंदर एडिक्शन करने से फॉर द क्वाइट पीरियड ऑफ टाइम यू गेट अ सिम्टोमेटिक रिलीफ, but that is not an option because the over a period of time it is going to make it worse. So therefore, as we always say, the panic disorder is a root cause of most of the psychological illnesses.
यानी कि ये जो पैनिक डिसऑर्डर है, ये ऐसा नहीं है कि खाली पैनिक अटैक से आता है। पैनिक डिसऑर्डर किसी मिस इन्फॉर्मेशन से भी आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने उस दिन भी बताया था कि इतने सारे टीवी न्यूज पे जो जिम डेथ है, उसको देख के सबके मेंटेलिटी में बैठ जाता है कि जिम में सब नेगेटिव चीजें ही होते रहती है। बट ऐसा नहीं होता। ऐसे ही हम जो है प्रोटीन को लेके बोलते हैं कि प्रोटीन इज अ स्टेरॉइड। मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि प्रोटीन इज अ अनहेल्दी, प्रोटीन खाने से जो है ये बढ़ते वो बढ़ते। बट वी डोंट नो दैट दिस इज द सेम प्रोटीन विच वी यूज एज अ मेडिसिन फॉर द यू कैन वेट लॉस पेशेंट, इन अ कैंसरस पेशेंट, बहुत सारे जो है लिवर सिरोसिस पेशेंट के अंदर हम लोग इसे सेफली देते हैं। रीजन है बिकॉज वी शुड नो व्हाट एग्जैक्टली इज अ यूजेस ऑफ अ थिंग, और तभी हम अपने इंफॉर्मेशन से जो है इस पैनिक अटैक को जो कम कर सकते हैं। बट पर्सन जो नॉर्मल ले लैंग्वेज वाला है या जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, उसको ये चीज नहीं समझ में आती। वो इस इंफॉर्मेशन को दिमाग में बिठा लेता है कि जिम जाने से डेथ हो जाती है, क्योंकि उधर हेवी करते हैं। अब हेवी के चक्कर में जो थोड़ा बहुत वो कर भी रहे थे वो भी वो बंद कर देते हैं। So therefore, we always say that the misinformation and certain seeing the situation will always going to make you go into the panic attack. और ये अगर मैं रोज प्रैक्टिस करूं, रोज जिम को मैं अवॉइड करूं, रोज जिम के बारे में इंफॉर्मेशन देख के मैं बोलूं ये गलत है, रोज जिम के बारे में चीज देख के मैं अलग बोलूं, तो ऐसे समय पे हमारा बॉडी जो है वो एक नेगेटिव पाथवे की तरफ जाता है, नेगेटिव प्रैक्टिस की तरफ से जाता है। और कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू क्रिएट अ पैनिक डिसऑर्डर्स। और ऐसे ही खाली एक जिम का कंडीशन नहीं, ऐसे बहुत सारे कंडीशन होते हैं। यानी कि किसी का इंफॉर्मेशन हमने देख लिया कि ये पर्सन जो थे इसको चेस्ट बर्निंग हो रहा था और अचानक एंडोस्कोपी गया तो पता चला कि उसको कैंसर आया। तो नेक्स्ट टाइम आपको जब चेस्ट बर्न होगा तो यू विल थिंक अबाउट कि अरे चेस्ट बर्न से कैंसर होता है, इवन इफ यू हैव डन द एंडोस्कोपी। बट बिकॉज ऑफ दैट थॉट प्रोसेसिंग, बिकॉज ऑफ दैट थिंक विच यू आर थिंकिंग अगेन अगेन, यू आर गोइंग इन टू द पैनिक डिसऑर्डर। सो आई होप सो ये पॉइंट आपको काफी क्लियर हो गया होगा that the overthinking, that is not only the overthinking, the bad thinking यानी कि the negative thinking, the negative neural pattern always going to go into the panic disorder। यानी कि अगर मैं किसी थिंग के ऊपर नेगेटिव न्यूरल पैटर्न बनाते जाऊं तो ये न्यूरल पैटर्न को बनने में समय लगता है। यानी कि किसी को पैनिक डिसऑर्डर एक दिन, एक दो हफ्ते, 3 हफ्ते में नहीं आती। वो पैनिक डिसऑर्डर जो है एक महीनों भर के प्रैक्टिस से आती है। यानी कि योर माइंड इज थिंकिंग ऑन दैट स्टफ अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड ऑल आर नेगेटिव थिंग, ऑल आर मिस इन्फॉर्मेशन। सो इसीलिए हम बहुत बार ऐसा देखते हैं कि हमारे पास जब पेशेंट आता है, वो आधे से ज्यादा गूगल का ज्ञान हमें बांटते रहता है कि ये इससे क्या, वो उससे क्या। तो रीजन ये है कि बिकॉज ही इज वेरी क्यूरियस। तो हम आगे भी ये देखेंगे कि सिम्टम इज सेम, बट सिम्टम इज परसिस्टेंट। even the panic attack it is not there, panic disorder patient feel very helpless, they have the same symptom persistent throughout the day, और ये उनको हमेशा रहता है। तो आई होप सो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे कि कैसे एक पर्सन पैनिक डिसऑर्डर में आता है। अब यहाँ एक चीज फिर से रिवाइज करता हूँ कि पैनिक अटैक के बाद पैनिक डिसऑर्डर में जाने की चांसेस हाई होती है। लेकिन अगर आपके दिमाग के अंदर कोई मिस इन्फॉर्मेशन आ गया है तो भी पैनिक डिसऑर्डर में आप जा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत अच्छा मैं एग्जांपल दूंगा यहाँ कि मेरे पास एक 3-4 महीने पहले एक पर्सन आया था। तो उसकी जो फियांसे थी यानी गर्लफ्रेंड थी, वो उसको लेके आई थी और बोलती थी कि इसको जो है बहुत चिड़चिड़ापन हो रहा है, बहुत ज्यादा जो है इसको लैक ऑफ स्लीप, इंसोम्निया होता है। तो बेसिकली सी वांट टू डू द ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया। पर जैसे जैसे हम हिस्ट्री लेते गए कि इंसोम्निया के कारण क्या है, कॉजेस क्या है, तो पता चला कि दोनों के अंदर म्यूचुअली जो है झगड़े काफी होते थे, यानी कि काफी उसमें जो फाइट्स वगैरह होते थे। तो नेक्स्ट स्टेप हम हमेशा ये देखते हैं कि फाइट का रीजन क्या है। तो उनको पता चला कि ये जो मेल है, जब फीमेल किसी फोन पे बात करती है तो उसको डाउट आता है कि ये किसी XYZ पर्सन से बात कर रही है। तो वो चीज वो अपनी इंफॉर्मेशन में भर लेता है कि वो जब भी फोन उठाती होगी तो शी मस्ट बी टॉकिंग टू द समवन हु इज फ्रॉम अनदर पर्सन, और ही इज फीलिंग लाइक ही इज चीटेड, ऑल्दो एवरीथिंग इज नॉर्मल। लेकिन वो थिंक करता है। अब इसी चीज को जब भी उस फीमेल को कॉल आता है, ये उसको दिमाग में बिठा के उससे लड़ाई करता है, झगड़ा करता है। तो इनिशियली तो यस फीमेल थोड़ा बहुत उसको एक्सेप्ट करेगी, बट लेटर ऑन सी विल ऑल्सो फाइट।
सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस सिचुएशन ही बिकम्स वेरी एंग्री। उसे पाल्पिटेशंस काफी होते थे, बिल्कुल इंसोम्निया होता था, पूरा दिन जो है पैनिक डिसऑर्डर की सिचुएशन भरे रहते थे। तो सबसे बड़ा है कि यहाँ हमको सीबीटी करके फिर मेडिकेशन चालू करनी है, जो मैं आगे और एग्जांपल दूंगा। बट लुक एट द थिंग, एकदम सिंपल चीज, यानी कि कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि पैनिक डिसऑर्डर जिसको हो रहा है उसकी जो रीजन है इट इज वेरी स्टूपिड रीजन, या ऐसा लगेगा कि अरे ये चीज क्यों हो रहा है। जो मुझे सबसे फनी इंसिडेंट याद आती है कि एक पर्सन मेरे पास पैनिक डिसऑर्डर का आया था, और वो कभी मेरे क्लिनिक के अंदर आया ही नहीं। वो मेरा क्लिनिक ग्राउंड फ्लोर पे है, मुंबई के अंदर। वो हमेशा खिड़की के बाहर खड़ा रहता है और मुझसे मेडिसिन लेके जाता है। और रीजन आप सोचो क्यों? वो रीजन इसलिए बिकॉज ही थिंक्स कि बिल्डिंग के अंदर अगर जो मतलब मेरा क्लिनिक है उसके अंदर अगर वो आएगा और अगर अर्थक्वेक आ गई तो वो मर जाएगा। अभी आप सोचो कि द थिंग इज दैट कि ही गॉट अ फोबिया ऑफ अर्थक्वेक। यानी कि मुझे उसकी वाइफ बता रही थी कि सर ये जो है मतलब हम बिल्डिंग्स में रहते थे, वहां हटा के थोड़ा स्पेंड पैसा करके वो बंगलों में आ गए कि वहां अर्थक्वेक आएगा तो उसको कुछ होगा नहीं। So look at the level of anxiety, look at the level of panic disorder। और सेम पर्सन जब गाड़ी चलाता है तो वो उसको थिंकिंग आते रहता है, मतलब सेम पर्सन कि कहीं वो किसी को ठोक ना दे, कहीं लेफ्ट में कहीं गाड़ी ठोक ना दे, किसी राइट में ठोक ना दे, कहीं बच्चों का एक्सीडेंट न हो जाए। इवन दो ड्राइविंग बरोबर हो जाती है, सब ट्रेवल हो जाता है, बट ये थॉट उसके दिमाग में आता है। सो ऑफकोर्स देयरफॉर दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि पैनिक डिसऑर्डर जहां पैनिक अटैक नहीं है, you have to find the reason why this person has gone into this panic disorder. And as I told you, most of the mental disorders are the panic disorder. Before they advance into something which is become very highly untreatable, like bipolar disorder or mania or schizophrenia, वो एडवांस स्टेज एक दिन में नहीं आता। This person or XYZ person goes into the multiple type of a thought processing, multiple type of a exposure, multiple misinformation, and then later on they goes into this some type of a very you can say very serious psychological issue. So therefore as a doctor it is our work कि हम बैठ के उसको वर्कआउट करें कि हमारे पास ये पैनिक डिसऑर्डर वाला पर्सन क्या है। यानी कि अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ऑलवेज एवरी मेंटल इलनेस जो आपको दिखते हैं या एनी साइकोलॉजिकल इलनेस जो आपको दिखता है, सबसे पहले ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज अ कॉज ऑफ दिस पैनिक डिसऑर्डर, और फिर बाद में उसको प्रोग्रेस करो कि पैनिक डिसऑर्डर से आगे क्यों। ये मैं आपको आगे बताता हूँ कि व्हाई दिस पैनिक डिसऑर्डर आर वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज द पैनिक डिसऑर्डर सिम्टम्स आर टू थिंग, आइदर अनएक्सपेक्टेड एंड रिकरिंग पैनिक अटैक आता हो विच इज ट्रीटेबल, बिकॉज पैनिक अटैक आता हो तो लास्ट टाइम भी मैंने बताया कि दैट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वर्क्स इन दिस केस वेरी वेल। लेकिन पैनिक अटैक नहीं आता हो लेकिन पैनिक अटैक का डर आ गया है कि अरे मुझे तो वहां चक्कर आ गया था, अब मैं जाऊंगा कैसे जाऊंगा, अगर मुझे चक्कर आएगा तो मुझे कौन देखेगा, मैं बस में खड़ा हूँ, मेरा कोई पहचान का नहीं है, मुझे चक्कर आके अगर मैं गिर गया तो कौन देखेगा मुझको, मैं अगर स्विमिंग कर रहा हूँ अगर उधर चक्कर आ गया तो मैं कौन देखेगा। तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस थॉट प्रोसेस this XYZ person never goes to the swimming, never goes to the trekking, never goes to the high altitude। ये बिल्कुल नहीं करते। इसलिए कभी कभी आप देखते हो कि जो सोशल अवॉइडेंस वाली टेंडेंसी होती है ये पैनिक डिसऑर्डर के सिम्टम्स में बैठ जाती है। तो यही इंपॉर्टेंट है कि वी हैव टू थिंक एग्जैक्टली कि व्हाई दैट पर्सन इज अवॉइडिंग द सिचुएशन, और वही मुझे जाके सीबीटी करना पड़ता है जो मैं आगे बताऊंगा। यानी कि जैसे मैंने वही बताया कि कॉज ऑफ ऑल साइकोलॉजिकल इलनेस इज पैनिक डिसऑर्डर। अब इसको और सिंपल समझाता हूं कि पैनिक डिसऑर्डर में पाल्पिटेशन होगा, स्वेटिंग होगा, लॉस ऑफ मतलब लॉस ऑफ सेंसेशन होना स्टार्ट होगा, गैसेस होना स्टार्ट होंगे, चेस्ट पेन होना स्टार्ट होगा, नौशिया होगा, डिजीनेस होगा, एकदम अनरियलिस्टिक थॉट्स आएंगे, अनरियलिस्टिक उसके कंप्लेन होंगे, और बहुत सारे हॉट मतलब यानी कि सेंसेशन, कोल्ड सेंसेशन सब आएगा। बट ये आने के बाद पर्सन का बिहेवियर क्या होता है इस सिम्टम्स के ऊपर, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि उसको क्या डिजीज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी पैनिक डिसऑर्डर वाले पर्सन के अंदर जो एक ह्यूमिलिएशन आता है,
या हरासमेंट आता है, यानी कि आप इसको ऐसा समझो कि किसी फीमेल के साथ कोई पास्ट में कहीं जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक याद आ रहा है, बहुत 1-2 साल पहले एक फीमेल आई थी मेरे पास। तो वो बताती कि 23 ईयर दो एज ऑफ हो गया ऑलरेडी, सी इज वेरी स्टेबल डूइंग अ गुड जॉब। पर वो बताती थी कि एक बार मतलब उसके स्कूल टाइम पे कोई तो पर्सन था, उससे मतलब एकदम फोर्सफुली सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाने की कोशिश कर रहा था। एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग, बिकॉज दैट पर्सन हु वाज XYZ वाज वेरी क्लोज टू हर, एंड दैट गिव हर अ ट्रॉमा। सो वी कॉल इट एज अ ट्रॉमा बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट, जो ऑलरेडी होके जा चुका है। लेकिन वो इंसिडेंट को लेके सी फील वेरी ह्यूमिलिएटेड, वेरी एम्ब्रेसमेंट, वो किसी को बता नहीं सकती, तो अंदर ही अंदर वो घूमता रहता है। तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं कि सोशल फोबिया, यानी कि ये फीमेल अब किसी मेल के ऊपर जल्दी ट्रस्ट नहीं करती, कहीं जो है अकेले जाने से डरती है, पार्टीज वगैरह में लेट नाइट वगैरह नहीं जाती, ज्यादा सोशल कांटेक्ट नहीं रखती। सो सी दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ सोशल फोबिया, यानी वही पैनिक अटैक, यानी कि वही पैनिक डिसऑर्डर कन्वर्टेड इनटू सोशल फोबिया बिकॉज शी फील अ एम्ब्रेसमेंट। नाउ अगर कोई ऐसा हो जाए कि किसी को थॉट बार बार आने लगे, यानी देखो मोस्ट ऑफ द टाइम कितने सारे हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि सर मुझे जो है ऐसा थॉट आते हैं कि जैसे मुझे चक्कर आने लगेगा, मुझे ऐसे थॉट आते हैं कि जैसे कि मेरी मनी लूज हो जाएगी, मैं थॉट ऐसा आता है कि, और मोस्ट कॉमन एग्जांपल कि जैसे एग्जाम का जब भी टाइम आने लगता है तो कैसा हमें फील होता है कि अरे अब तो पढ़ाई होने ही वाली नहीं है, अब तो कुछ भी नहीं होगा, अब तो ये तो नहीं होगा, एंड व्हेन यू स्टार्ट सीइंग ऑल दिस स्टफ तब तो और भी नहीं होता है। तो रीजन इज दैट बिकॉज यू आर गिविंग कमांड टू योर ब्रेन कि दिस इज नथिंग इज गोइंग टू हैपन। सो इन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर दिस थॉट बिकम्स अ रिपीटेटिव बिहेवियर, यानी जो हम लोग बोलते हैं कि बार बार हाथ धोता है, बार बार हाथ धोता है, क्लीन रखता है, ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर, सेम थिंग। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज नॉट ओनली का हाथ धोना, एनी थॉट विच इज रिपीटेटिव अगेन एंड अगेन, इट्स ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर। यानी कि मैं ट्रेन में नहीं चढ़ूंगा क्योंकि वहां बहुत फोबिया, मतलब बहुत सारी पब्लिक चढ़ती है और मुझे डर लगता है, then we also call it as a phobia, but it is also a type of a condition where we call it as anxiety. So anxiety is again a second word of this panic, if you call me or if you can say me. अब यही अगर थॉट प्रोसेस 24 आवर चलने लगे, यानी पर्सन आपके पास सुबह से उठे शाम तक कुछ ना कुछ थॉट सोचते रहे, कुछ ना कुछ डर लगते रहे, फैमिली का डर, गांव मतलब कॉलेज कैसे जाऊंगा उसका डर, पढ़ूंगा कैसे डर, घर पे आऊंगा कैसे डर, बस में कैसे चढ़ूंगा, किस तरह से होगा, वी कॉल इट एज अ जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, दैट इज द सेम पैनिक डिसऑर्डर बट इट इज हैविंग अ वेरी कांस्टेंट फियर। तो ये थिंकिंग के ऊपर है। दूसरा, व्हाट वी कॉल इट एज अ पैनिक डिसऑर्डर, कि जिसमें हमें डर लगता है कि कहीं अटैक आ ना जाए और हम वो अवॉइड करते हैं, वी कॉल इट इज अ पैनिक डिसऑर्डर, जो मैंने लास्ट टाइम में डिस्कस किया। पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, यानी कि कोई अभी जस्ट ऑफ हुआ है, जैसे अभी रिसेंटली परसों के दिन मेरे पास एक फीमेल आई है जो 2006 से ऑन मल्टीपल मेडिकेशन है फॉर अ स्लीप, बट राइट नाउ उसको स्लीप नहीं आ रहा है और मेडिकेशन बढ़ा नहीं सकते, इसलिए वो अपॉइंटमेंट के लिए आई है। बट इफ आई आस्क हर कि क्या हुआ था, तो बोले कि माय ब्रदर हैज लॉस्ट एट अ वेरी यंग एज, और जिसके कारण उसको सदमा लग गया, यानी कि बेसिकली शी इज वरी अबाउट कि मतलब वो कैसे ऑफ हो गया, क्या हो गया, कहीं मतलब मेरे बच्चे ना ऑफ हो जाए, कहीं मेरे बाकी लोग ना ऑफ हो जाए, कहीं मेरे जो है मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। सो सी दिस इज अ पोस्ट स्ट्रेस, मतलब पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। किसी पर्सन का कोई रिलेटिव ऑफ हो जाता है एंड दे फील स्ट्रेस बिकॉज दैट पर्सन वाज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन देयर लाइफ, और वो स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाता है। और बाय बाय मतलब बैड लक बोलिए कि क्या वो सेम फीमेल जिसके बारे में इंसोम्निया के बारे में बात करें, शी ऑल्सो लॉस्ट अ लेडी, मतलब हर यंग चाइल्ड which is of age just 23, and all of sudden कुछ उसको डेंगू हुआ एंड everything is gone in such a fast way कि वो ऑफ हो गई। सो बिकॉज ऑफ दैट उसका जो मतलब ओल्ड जो है पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, वो काफी फ्लेयर हो रहा है, इसलिए वो आयुर्वेद के पास आया कि क्या हम मेडिसिन बढ़ाने के बदले हेल्प कर सकते हैं। तो सी ऑल दिस कंडीशन इज जस्ट अ पैनिक डिसऑर्डर्स, यानी पैनिक डिसऑर्डर will most of the time will leads to the other mental disorder. So this is a very simple pathway कि we have to understand that each and everything. Now there is a 3 case presentation जिसको मैं ऐसा सोचता हूँ कि या तो आप कहीं लिखो या तो आप लेटर ऑन लेक्चर को सुनो, लेकिन आप देखो कि मैं हिस्ट्री कैसे लेता हूँ। लाइक द
केस नंबर 1 कि ये 41 ईयर का मेल है। मुझे लगता है ये जो केस है ना, ये 1.5 साल पुरानी है। ये मुझे ना कोविड के टाइम पे मिला था। और वो क्या बोलता था कि ही इज हैव अ यू कैन से एपिसोड ऑफ ब्रेथलेसनेस, डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग। और क्यों डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग होता था? क्योंकि कोविड के अंदर जो हम सबको पता है कि मोस्ट कॉमन सिम्टम कोविड का क्या है, ब्रेथलेसनेस। तो फर्स्ट वेव में आप सभी को पता होगा कि द सिचुएशन ऑफ वर्स, टीवी पे इतने सारे न्यूज आते थे, इतने सारे मिस इन्फॉर्मेशन आते थे, और हम लोग वो टाइम पे क्या करते थे, पूरा दिन टीवी लगा के बैठते थे। तो ये पर्सन जो है रोज ऐसा अपने आप को चेक करता था, अपने आप का SpO2 चेक करता था। सी दिस इज व्हाट आई कम टू नो विथ हिस्ट्री टेकिंग। और उसको 6 महीने से बैक टू बैक उसको ब्रेथलेसनेस होता था। उसने अपना चेस्ट एक्सरे करवाया, उसके बाद उसने सीटी स्कैन करवाया, उसके बाद उसने SpO2 हमेशा चेक करते रहता था। बट स्टिल वेन एवर ही गेट एपिसोड्स ऑफ ब्रेथलेसनेस, द थिंग दैट ही थिंक कि उसको कोविड हो गया, और एक कोविड नेगेटिव आया है, लेकिन फिर भी जो है नेगेटिव कोविड के कारण उसको मतलब भले वो नेगेटिव हो, लेकिन उसको स्टिल कोविड हो गया और शायद से इसलिए पकड़ नहीं पा रहे। सो यू बिकम वेरी पैनिक। अब स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ते तो ठीक था, लेकिन अब ये महीनों महीने चलने लगा। और ये एपिसोड अब आने के बाद, यानी कि धीरे धीरे पहला ब्रेथलेसनेस आया होगा, दूसरा ब्रेथलेसनेस विथ सम सिम्टम, फिर ब्रेथलेसनेस विथ मोर सिम्टम, फिर ब्रेथलेसनेस विथ पाल्पिटेशन विथ स्वेटिंग। सो व्हाई इट इज कमिंग? Because he is continuously thinking about that breathing issue. He is collecting the data that corona can be a negative and still you have a disease कि जिसमें breathlessness हो सकता है, death हो सकती है। So that information, this information has make his symptoms very worst condition. और धीरे धीरे पाल्पिटेशन आना, चेस्ट पेन होना, 24 आवर्स सोचते रहना कि क्या मुझको कोविड हो गया है, क्या कोविड नेगेटिव आया है। लेकिन लोग बोलते हैं कि कोविड नेगेटिव आया है और एक्सपोजर 1-2 दिन का हो फिर भी हो जाएगा। सो ही वाज लाइक बॉम्बार्डिंग सच अ इंफॉर्मेशन टू मी ऑन अ कॉल कि एटलीस्ट 40 मिनट तक वो खाली यही समझाते रहता, मुझे बता रहा था, सिखा रहा था कि हाउ द कोविड गोज ऑन एंड ऑफ। सो व्हाई आई एम टेलिंग ऑल दिस स्टफ? सी बिकॉज देयर इज अ नो ऑप्शन, यू हैव टू लिसन टू द पेशेंट कि वो क्या दिमाग में बैठा है। बट ऑल एट ऑल व्हाट आई रोट दैट एट अ टाइम ही वरीज दैट ही माइट डाई, दैट कोविड जो उसके अंदर है, जो कोई पकड़ नहीं पा रहा है, दैट इज कोविड गोइंग टू किल इट। नाउ थिंग इज दैट कि ये कितना सिली सिचुएशन है, कितना सिली थिंग है, बट दिस इज नॉट अ कॉमन। when the once the patient goes into a panic disorder, this all thing happens, and therefore there was a persistent worry that it might have a other attack, यानी कि कोविड अगर आएगा तो उसको इस तरह से अटैक होगा। ही it goes in a such a मतलब worse scenario. So he began to avoid to meet to the family. रूम में अकेला अकेला रहता था, किसी को खांसी आ जाए तो उसके पास बिल्कुल नहीं जाता था, खांसी आ गई तो तुरंत एंटीबायोटिक लेता था। किसी को अगर कफ का सिचुएशन आया तो भी वो लेता था। तो सी दिस ऑल थिंग की जैसे वही बताया कि उसकी वाइफ जो है स्टार्टिंग में तो थोड़ा सपोर्ट कर रही थी, बट लेटर ऑन इवन शी बिकम वेरी फ्रस्ट्रेटेड। नाउ वी लेटर गोइंग ऑन टू थिंक कि इधर क्या कर सकते थे। सो द थिंग इज दैट ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू गिव द मेडिसिन फॉर द पैनिक डिसऑर्डर, फॉर ऑल द पैनिक अटैक, बट व्हाट अबाउट हिज मिस इन्फॉर्मेशन, वो कौन निकालेगा? सो देयरफॉर लास्ट टाइम आई टोल्ड यू दैट मिस इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए यू नीड अ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो मैं हमेशा आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ रहता हूँ। 40% cognitive behavior therapy, 60% you can think your medicine is going to work. So this is a case number 1. Now case number 2 was much more funny. Although you can say, I think so, case number 2 has somewhat is yes, okay, it's over here. So case number 2 was 24-year male. It is still under my treatment. And ये थिंग अभी तक जा नहीं रही है, बहुत मतलब फनी पर्सन है। व्हाट इज अ कंप्लेन? एपिसोड ऑफ बर्निंग इन द एब्डोमेन। और एक दिन इतना बर्निंग हो गया था कि दैट पर्सन हैज गॉन टू द सम कार्डियोलॉजिस्ट, डन द ईसीजी, दे गिव हिम द आईवी एमसेट एंड पैन 40 फॉर सिम्टम्स। बट उसके बाद उसके दिमाग में बैठ गया कि मेरे दिमाग में मुझे तो कुछ तो ऐसा हुआ है कि जिसके कारण मुझे जलन होता है। ही अंडरगॉन इनटू आई थिंक सो एंडोस्कोपी विच आई रिमेम्बर, और उसको छोटा सा grade 1 गैस्ट्राइटिस आया था। बट इसके दिमाग में ऐसा बैठ गया कि दिस इज अ थिंग व्हाट कॉजिंग में द गैस्ट्राइटिस। अब जब मेरे पास वो एपिसोड के लिए आया तो मैं उसको पूछा कि क्या क्या होता है। सो टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आउट ऑफ ऑल द
मतलब यूजलेस सिम्टम्स वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, कि उसको ऐसा लगता है कि बर्निंग धीरे धीरे आता है, then it gets a type of a you can say difficulty in a breathing, like it's not a breathlessness, difficulty in a breathing, यानी कि उसको ऐसा लगता है कि वो खुल के मतलब सांस नहीं ले पा रहा है। then all of a sudden the bubs come out, कि उसको bubs आना स्टार्ट होता है, and then later on all the symptom get subside। अब यही उसको अटैक्स बार बार आता है, यानी कि पहले जलन, फिर उसके बाद ब्रेथलेसनेस, यानी दैट डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग टाइप ऑफ सिम्टम, देन बर्पिंग, एंड देन लेटर ऑन एवरीथिंग गोज अवे। बट लेटर ऑन, अब बर्पिंग के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है कि उसको एब्डोमेन पेन भी चालू हो गया, अब उसको डिस्कम्फर्ट भी चालू हो गया। तो ऑफकोर्स फर्स्ट टाइम मैंने जब उसका कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी किया तो उसमें इसका ये डाउट तो सॉल्व कर दिया कि ये आपको कुछ ज्यादा सीरियस नहीं है, एंड दैट ग्रेड 1 गैस्ट्राइटिस इज नॉट गोइंग टू कॉज। अब इसका दूसरा पार्ट देखिए क्या होता है कि इसके बाद भी अब उसका क्वेश्चन रोज आके मुझे पूछता है, मतलब आज तो वो आया नहीं, अदरवाइज ही कम टू द क्लिनिक एवरी संडे फ्रॉम पालघर, इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम द क्लिनिक। बट वो पूछता है कि मुझे ये उम्र में क्यों हुआ। तो even I tell the same thing कि don't stop asking all this question to you, because this is going to make your mind to find more problem other than the solution. So therefore he is having a persistent attack, although the attacks are very low, but still the burning symptom it is somewhat is not going. Maybe in some case I मतलब once I will just treat him properly, I am going to present this case to you, and I have all the charts, और because as I told you कि मैं ये जो जितने भी एंजाइटी के पेशेंट्स है, इसके मैं जो है व्हाट्सएप पे जो है डाटा बनाते रहता हूँ, चार्ट बनाते रहता हूँ कि पुट योर सिम्टम्स व्हाट यू आर सफरिंग फ्रॉम, then only we will come to know ki what exactly problem you are having and how may I can help you along with a medication. So again he began to avoid the all unfamiliar food, and which I am very happy because his eating habit was very unhealthy, so he has avoided, I am very happy. And his diet now is very, you can say a very plain food, but thing is that he's losing the weight. So now his family, his father called me yesterday also and told me कि आजकल बेटा को भेज रहा हूँ and you just start for something for weight gain. But I told him the same thing that if I will start for the weight gain, the thing is that my medicine will not work in a that way. Of course, you can increase the protein in a diet, which is a very common thing, but since he cannot have a very large amount of non-veggies right now, so therefore he is very worried. Although he has not lost the weight, but अगर घर वाले बोल रहे हैं तो he is now again have a lot of tension कि stress कि मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ. So what this is a disease. See, you will call it as a IBS, and of course it is IBS, but this is what we call it as a panic disorder induced IBS. Now आप लोग तो इसको छोटा सा वर्ड देके छोड़ दोगे कि स्ट्रेस इंड्यूस आईबीएस, या आपको आईबीएस की तकलीफ है या तो आपको स्ट्रेस है. सो थिंग इज दैट कि अब यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि टू ट्रीट द सिम्टम, बट along at the same time you have to understand ki how to address his panic disorder. So this is a panic disorder. This is not some type of a, you can say only IBS symptom. Now this 38-year female, I remember, and very funny female, because this is a something which you will relate. देखो ये सब चीज है ना, आपको नॉर्मल दिखा रहेगा. कितने बार आपके ओपीडी में कोई फीमेल मेल आके बोलता है कि मुझे बर्पिंग बहुत हो रही है, मुझे मुंह से गैसेस बहुत मतलब जो है बाहर निकलता है, मुझे ढेकारे बहुत आती है, इतनी ढेकारे आती है कि कोई मेरा शरीर दबा दे, कोई मेरा सर दबा दे तो ढेकार आना स्टार्ट होती है. Now, all this patient of excessive burping, of course, they are suffering from, you can say, a gastroesophageal reflux syndrome. और ये कंडीशन में ऐसा होता है कि by the time they get so much gases, उनके कार्डियक स्पिंचर लॉस हो चुके रहते हैं because of that bad habit or excessive tea or something like that. एंड यही रीजन है कि जो गैसेस है ये कंटिन्यूअस जो है हमेशा ट्रैप रहते हैं. और हम कभी एरोफेजिया के बारे में बात करेंगे, बट यहाँ बोलने का अर्थ ये है कि ये जो तीनों पेशेंट है, दे हैव अंडरगॉन इनटू ऑल द इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल टेस्ट वाज नॉर्मल, बट द बर्पिंग वाज नॉट रिस्पोंडिंग इवन विद अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट. एंड फॉर द पास्ट 3 years शी इज नॉट बी स्लीपिंग प्रॉपरली, शी इज हैविंग टू मच पेन इन अ बॉडी. पूरा बॉडी जो है कहीं कहीं कभी जलता है, कभी पेट जलता है, कभी पैर जलता है. एंड along with every episode she used to feel the experience the headache, pinching nerve symptoms, abdomen pain or discomfort,
और किसी ने उसको बता दिया था कि आपका लीवर खराब है, इसलिए ये सब होता है। नाउ शी इज वरी कि मेरा लीवर खराब कैसे हो गया। ऑल्दो हर एसजीओटी, एसजीपीटी, लीवर प्रोफाइल, यूएसजी, एवरीथिंग इज नॉर्मल, लेकिन वो बोलती थी कि मेरा मुझे लीवर कैसे खराब हो गया। और एवरी टाइम सी गेट्स द बर्पिंग इशू, सी थिंक कि उसका लीवर खराब हो गया। अब ये आप सोचो कि देयर इज नथिंग सॉर्ट ऑफ थिंग कॉल्ड लीवर खराब हो गया, लेकिन नाउ शी इज वेरी एंजाइटी, शी इज हैविंग द पैनिक डिसऑर्डर, कि इसके साथ अब उसको घबराहट होती है, उसको नींद नहीं आती कि ये मुझको क्या हो गया, मुझे ये कैसे हो गया। एंड बिकॉज ऑफ दिस persistent worry about that, getting a loss of sleep, having a such a type of a symptoms, now she's again begin to avoid certain situations, she is not very कंफर्टेबल विद द फैमिली, कोई उसको बोल देता है तो उसको जो है हाइपर सेंसिटिविटी होने लगती है। व्हाट एग्जैक्टली इट इज दिस? दिस इज नथिंग, ऑफ कोर्स दैट इज अ जर्ड व्हिच आई एक्सप्लेन्ड यू नो फर्स्ट अटेम्प्ट, कि उसे तो ट्रीट करना ही है, बट ऑन अ सेकंड अटेम्प्ट शी इज गोइंग इनटू द पैनिक डिसऑर्डर, शी इज गोइंग इनटू द chronic stress. See, I think sometime this chronic stress is nothing but the panic disorder. I would like to label this chronic stress disorder as a panic disorder. See, psychological disorder में क्या problem है कि there is a no fixed word to define certain criteria. Still, I am trying my best to make you understand certain thing that सब panic disorder मतलब सब stress एक जैसे नहीं होते. You have to understand what exactly it is. So just for notification कि अगर ये lecture बंद हो जाए, just join it again. I'm going to reopen the class again. So I hope so that with all these three cases, now you will learn to take the history in all the person who is having a multiple complaint, erectile dysfunction, liver problem, gases problem, जिसके अंदर सब टेस्ट नॉर्मल है. You have to be very patient with them. So this is one of the most important formula why the panic disorder, anxiety disorder patients stay with me with my treatment, because I listen to them. I try to modify the thoughts, I try to reverse the thoughts, and this is the most important of every doctor, that every doctor should do the same, should